السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب لوگ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لسانی یفقہوا قولی۔ قولی اے میرے رب، میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی راہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل ہم نے ایک نیا سبق پڑھا تھا۔ سبق تھا تجدید مال تجدید۔ تجدید والے حرف کے بعد تجدید آئے، یعنی دو تجدید والے حرف ایک ساتھ آئے قرآن میں۔ جب بھی تجدید آتی ہے قرآن میں تو اکثر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ تجدید والے حرف کو دو بار پڑھنا ہوتا ہے، ایک بار جزم سے اور ایک بار اس کی حرکت سے، اس کی زیر زبر پیش سے۔ تو اکثر وہاں پہ کیا ہوتا غلطی ہوتی، اور وہاں پہ تھوڑا سختی سے پڑھنا پڑتا، تھوڑا اسٹرانگلی، تھوڑا ہے نا، تھوڑا گھس کے پڑھنا پڑتا، تو وہاں غلطی ہوتی۔ اور جب دو تجدید ایک ساتھ آ گئی تو وہاں غلطی کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ہے نا، اس کو جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا نہیں کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، یا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ تو کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا نام تھا تجدید مال تجدید، تجدید کے بعد تجدید والا حرف ہم کیسا ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہم نے اس کو پڑھا، کلاس میں پریکٹس کی، اور پھر ہوم ورک پہ میں نے آپ کو وہ پیج پورا ڈالا اور وائس میسیج میں پڑھ کے بھی بتایا تاکہ آپ گھر میں اچھی پریکٹس کر کے آئیں۔ اور وہ تمام آواز چلا گئی مقصد کیا چلے گی؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، جس کا آواز نہیں آ رہا جس کو تو انہوں پھر ریبوٹ کرنا، پھر زوم میں سے نکل کے دوبارہ جوائن کرنا۔ کبھی بھی جو ہے آپ کو کلاس میں کسی کو بھی کوئی ڈسٹربنس ہوا، کہ کبھی بھی ہو سکتا، کبھی جیسا ہم لوگ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں اور اب بات سنے نہیں آ رہی ہے تو فوراً کیا کرتے آپ کٹ کر کے پھر ملاتے، یا پھر اپنے اپوزٹ والے کو بولتے ٹھہر ذرا ڈسٹربنس ہے آواز میں تم کو دوبارہ ملاؤں گا، پھر آپ کٹ کر کے دوبارہ ملا تو لائن صحیح ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ٹیلی فون کے یہ لائن پہ ہی چلتا ہے، یہ بھی آن لائن ہی چلتا۔ تو جب بھی کوئی زوم کی کلاس میں کسی کو کوئی ڈسٹربنس محسوس ہوا تو فوراً اس میں سے کوئٹ کر لینا، نکل جانا، نکل کے دوبارہ جوائن کرنا۔ تو دوبارہ جوائن کریں گے تو پھر آپ کی وہ تکلیف، وہ مشکل دور ہو جاتی، وہ پرابلم سالو ہو جاتا۔ تو جو ہے ہم جو ہے تجدید مال تجدید کی کل پریکٹس کرے تھے۔ میں نے ہوم ورک میں آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا، اور وہ 3-4 سلائیڈ بھی بھیجے تھے جس میں میں نے ہجے کر کے، یعنی بریکٹ کھول کے، تجدید کی بریکٹ کھول کے میں نے آپ کو ایک ایک حرف الگ الگ کر کے الفابیٹیکل ہجے کر کے بتایا تھا، جس سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو 3-4 الفاظ کے میں نے سلائیڈ بھی آپ کو بھیج دیے تھے تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس پہ غور کریں، سمجھیں کہ تجدید کیسا کام کرتی، جزم کیسا کام کرتا۔ تو الحمدللہ آج ہم کیا کریں گے، آج ہم آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اور پھر ہم آپ لوگ جب یہ آپ لوگوں کا پڑھنا ہو جائے گا سب کا، میں دیکھ لوں گا ہاں سب اچھا پڑھ رہے ہیں، سب کا الحمدللہ سب کا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو آج ہم دو نئی چیزیں، چھوٹی چھوٹی دو نئی چیزیں ہم پھر کلاس کے آخری حصے میں پڑھیں گے۔ تو وہ تمام حضرات جو
बीच में से कूद करके चले जा रहे हैं या जो भी है, तो वो लोग नहीं जाए, आखिरी तक ठहरे। हो सकता है आखिरी में हम कोई नई चीज पढ़ना हो आज, है ना। आज संडे है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी को बच्चों को छोड़ना नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाने का कोई जवाब भी नहीं है। तो जुड़े रहें क्लास में, क्योंकि बहुत चीज़ें हमको सीखना है, तो और हमारा कोर्स जो है बहुत ही टाइम कम है और सीखना ज़्यादा है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जो है पूरा आखिरी तक रह के तमाम चीज़ें सीखने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज आप लोगों का मैं वो डाल दूंगा। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, कल ये पढ़े थे ना, तो ये यही है। ये स्लाइड है तजदीद माल तजदीद, तजदीद के बाद तजदीद, एक्सरसाइज ऑफ तजदीद फॉलोड बाय ये तजदीद। जो उर्दू से नावाकिफ है वो लोग इंग्लिश में भी अपना सबक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद कुरान तो अरबी में ही रहेगा, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो अंग्रेजी में नहीं हो सकता। तो क्या है, फिर एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद मैं एक एक के बाद नाम बोलूंगा सबका, फिर आप लोग पढ़ना। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून, यू में क्या है, आखिरी में दो तजदीद के बाद मद्दे असली है। इल्लियून यज़क्का, खड़ा ज़बर है आखिरी में, दो तजदीद है, फिर खड़ा ज़बर है। यज़क्करु, यज़क्करु, है ना। मुज़म्मिलु, यहाँ पे क्या है, दो तजदीद के बाद दूसरी तजदीद पे गुन्ना है। हम अभी गुन्ना पढ़े हैं, पिछला सबक हमारा गुन्ने का था। हुरूफ गुन्ना दो है, नून और मीम। नून पे जब तजदीद आएंगी या मीम पे तजदीद आएंगे, गुन्ना होगा। गुन्ना 2 से 3 हरकत तक आवाज को नाक के पासे में घुमा के अच्छा गुन्ना करना है ना। यहाँ मीम मुशद्दद है, तो हम मीम पे गुन्ना करना है हमको। मुज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, है ना। मुद्दस्सिरु, ऐसा, क्योंकि दो दाल है, दो सा है, मुद्दस्सिरु, समझ गया ना। इल्लीना, बाद में मध्य असली है इसमें भी, है ना। चलिए आप लोग हैंड रेस करिए, जो पढ़ना, जो सीरियल वार, मैं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को बुलाऊंगा, जो सीक्वेंस में आप लोग हाथ उठाएंगे। हर आदमी को हाथ उठाना आना चाहिए, जिसको पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, ही शुड नो हाउ टू रेज हैंड, बिकॉज हम उसी सीक्वेंस में नाम पुकारेंगे सबका। जनाब बिलाल मजीद साहब सबसे पहले हाथ उठाए, जनाब बिलाल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून वेरी गुड, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्कर, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब्दुल कादर जिलानी साहब, सैयद अब्दुल कादर जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियूना यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, और अच्छा पढ़े, गुन्ना अच्छा करें। मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीना। वेरी गुड, माशाल्लाह। महबूब खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन। माशाल्लाह। मोहम्मद अय्यूब हाजी साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جناب زبیر امین بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. محمد اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو لوگ پڑھ لیے اپنا ہینڈ ڈاؤن کر کے لسٹ میں سے نکل جائے. پڑھیے اسماعیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا. بعض لوگ جو ہے ابھی سے مائک کھول لیے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا. میں بند کر دیا سب کے مائک. جن کا نام بولا تھا بلائے انہوں ہی مائک کھولنا، اور پڑھ لینے کے بعد اپنا مائک بھی بند کر دینا اور اپنا ہینڈ بھی ڈاؤن کر دینا. ٹھیک ہے. نیکسٹ جناب سجاد احمد بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل غنہ کریے، مزمل میں غنہ کریے. مزمل مدثر الیین. اور سختی رہا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. جناب شجاعت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون نہیں غلط ہو گیا. یزکا نہیں، یزکا تین ٹکڑوں میں پڑھنا. یزکا یذکرو. نہیں، میں تین ٹکڑے بولے تو آپ تو ایک ہی جھٹکے میں مار دیے پورا. یذکرو. یذکرو. آپ کل وائس میں سے سنے تھے. آپ ہوم ورک کرے آپ کل؟ ہاں کرا مول صاحب. پھر کیا کیسا اس میں پریکٹس نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ساتھ یذکرو نہیں ہے وہ، یذکرو. ہر اس پہ رکیے آپ. ہاں ایک حرف پہ رک لیتے پڑھنا ہے، وہ بریک کر کے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے مگر پڑھ رہا ہی نہیں نا آپ. ہاں یہی ہے نا، بولنا صحیح ہے لیکن کرنا صحیح نہیں ہے نا. جی ہاں صحیح ہے انشاءاللہ. کر یذکرو. رکیے. یز ٹھہر جائیے، سانس لیجیے. ایک بار سانس لیجیے بیچ میں. یذکرو. یذکرو. جی یذکرو. جی. مزملو. پھر ملا دیے. رک جائیے. مزملو غنہ کریے. ہاں مزملو مدثرو. پھر ٹکڑے کریے، اس کے تین ٹکڑے کریے.
مدثرو الیین. ماشاء اللہ. محمد مقصود عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکروا مزمل. نہیں. پھر الگ الگ. مزملو. جی. اور ایک بات یہ کرنا سب لوگ کیا کرنا. ایک منٹ. یہ جو سب لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں. مزملو لام پہ پیش ہے خالی، مزملو نہیں ہے. مزملو لام کو جلدی پڑھنا ہے، ایک ہی حرکت ہے. لو نہیں کرنا، مدثرو نہیں کرنا ہے نا. جلدی پڑھنا آخری کا حرف کو. پڑھیے مزمل کو پڑھیے. مزملو مدثرو الیین. بہت خوب ماشاء اللہ. ظہور عباس راتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیون یذکر مزمل. نہیں آپ بھاگنا نہیں. بھاگے تو غلط ہو جاتا. ٹھہر جانا، ہر دو لفظ کے بعد ٹھہر جانا. ٹھہر جانا، ذرا سانس لینا، ادھر ادھر دیکھنا. مزمل. جی. نہیں پھر ملانا نہیں. میں بولا آپ سانس لینا، ادھر ادھر دیکھنا، ٹائم وقفہ دینا، بیچ میں گیپ دینا. مزمل. ارے بھاگ رہے ہیں کہ تو بھائی، جلدی کیا ہے. ٹھہر جائیے، سانس لیجیے تھوڑی دیر. زملو اچھا دو تین حصوں میں پڑھنا. مزمل مدثر علیین. ماشاء اللہ. حامد علی صاحب، جناب حامد علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون بڑا زبر پڑی. جی. یذکرو نہیں، یذکرو. سختی رہنا پڑھنے میں، جی. تجدید کے پڑھنے میں جان رہنا، تھوڑا ڈھیلا نہیں پڑھنا. جی. یذکرو مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. مختار اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکا. نہیں. یز بریک کیسا مارتے گاڑی کا بریک، ویسا مارنا. یذکرو. غلط. مزملو. میم پہ غنہ کرنا ہے. مزملو. ایک منٹ. مزملو. ہاں، میم پہ میم مشدد ہے نا، غنہ. مدثر الیین. نہیں، الیین. ہاں الیین. جی.
اب شیخ عبد القیوم صاحب السلام علیکم ورحمۃ جو اللہ لوگ پڑھ لیے وبرکاتہ. ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے. جو لوگ اعوذ پڑھ لیے باللہ من ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یزکا یذکروا مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ. شیخ رشید صاحب. شیخ رشید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الینا. ماشاء اللہ ویری گڈ. سید مشتاق صاحب جی میل والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون. نہیں صحیح نہیں ہے، پھر پڑھیے اسٹرانگلی پڑھیے جھٹکے سے. اچھا. الیون. الیون. الی نہیں لی. یا سے ملانا ہے. یا کا آواز کیسا رہتا؟ الیون. الیون. ٹھیک ہے. ٹھیک. یذکا یذکر مزمل. میم پہ غنہ کرنا ہے یہاں پہ. مزمل. نہیں غنہ مزمل. مزمل مدثر الیین. کل آپ ہوم ورک کے ساتھ پریکٹس کرے تھے گھر میں؟ نہیں سر نہیں کیا تھا، میں سفر میں تھا. کوئی بات نہیں، کر لیے تو یہاں پہ ایک دم سبق اچھا رہتا. کر لے کے 10-15 منٹ نہیں لگتے اس کو. سید ارشد بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ ویری گڈ. بہت اچھا. فردوس اکرم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الیین. بہت خوب، بہت اچھا. ایاز احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ ویری گڈ. فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليون يذكر مزمل مدثر عليين. वेरी गुड, माशाल्लाह। मोहम्मद खलील वानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इलियीना. सैफुल्लाह कुरैशी, जनाब सैफुल्लाह कुरैशी साहब। जो लोग पढ़ लिए हैंड डाउन करके लिस्ट में से निकल जाए। जो लोग पढ़ लिए हैंड डाउन कर दें। बोलना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए सैफुल्लाह। इल्लियूना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लियीना. माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मुबस्सिरुद्दीन साहब, सैयद मुबस्सिरुद्दीन उस्ताद, जी। मैं अज़मतुल्लाह कुरैशी का बेटा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़मतुल्लाह हमारे बहुत बहुत अजीज शागिर्द हैं हमारे, बहुत अच्छे और बहुत ही माशाल्लाह। करीमनगर से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, करीमनगर से पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप भी। आप जुड़े रहिए। वालिद आप बहुत अच्छा पढ़ते थे अज़मतुल्लाह साहब, बहुत बहुत अच्छे हमारे हर दिल अजीज शागिर्द हैं हमारे, माशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा करे आपने बताया जी। अच्छा, पढ़िए जनाब मुबस्सिरुद्दीन साहब, सैयद मुबस्सिरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लियीना. माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कल होमवर्क के साथ प्रैक्टिस की थी ना? बिल्कुल किया सब। हाँ, जब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप जो है बहुत एक तो अच्छा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और रेगुलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जी। जनाब सैयद जाकिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु नहीं, गलत हो गया। मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लियीना. आखिरी में जो पेश है उसको नहीं खींचना। मुज़म्मिलु रू बोले तो अल्लाह दो हरकत है। मुज़म्मिलु नहीं, फिर खींच रहे ना आप। मुज़म्मिलु. हाँ, पढ़िए। मुदस्सिर भी पढ़िए। मुद्दस्सिरु. फिर क्या क्यों खींचे? पेश को क्यों खींचे? मुद्दस्सिरु सिर्फ बस एक हरकत। इल्लियीना इल्लियीना. छोटा पढ़ना। वेरी गुड, अब सही है। शुक्रिया जनाब इरशाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लियूना
يذكر مزمل مدثر إليين. MashaAllah. Very good. Muhammad Yunus Maniyar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. MashaAllah. Very good. بہت اچھا. جناب اشفاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یزکا. نہیں، غلط ہو گیا. یزکا. ہاں، یز ایسا جھٹکے سے روک دینا. یز یزکا یذکر مزمل. یہ مزمل بھائی پھر وہی چکر میں آ گیا. مز رک جاؤ، مز پڑھ کے. مزمل مدثر الیین. ہاں، جلدی نہیں کرنا پڑھنے میں، اطمینان سے. الیین. الیین. ہاں، توڑ دینا، بیچ میں پاس کر دینا. آگے بڑھنے کے لیے جلدی نہیں کرنا. الیین. الیین. ماشاءاللہ. مصدق بن طارق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مصدق صاحب، آپ پہلے پڑھے تھے، آپ یہی نام سے آ رہے ہیں آپ؟ جی سر. مصدق بن طارق میں پاس نہیں لکھا ہوا نا آپ کا نام؟ کیا نام لکھا تھے؟ سر یہی نام لکھا تھا. مصدق بن طارق تو میرے پاس نہیں ہے. مصدق بن طارق. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ سر سری نگر سے. سری نگر سے آپ. میں لکھتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں. ٹھہر جائیے. جی سر. کیا کرتے ہیں مصدق بن طارق صاحب آپ؟ سر پولیس میں ہوں. ماشاءاللہ. مصدق بن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاءاللہ. ویری گڈ. سلام اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاءاللہ. ویری گڈ. مائک بند کریے اور ہینڈ ڈاؤن کر لیے. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. جو لوگ پڑھ لیے ہینڈ ڈاؤن کر دیں. مائک بند کر دیں. محمد یوسف منیار صاحب، آپ پڑھ لیے نا؟ مائک بند کریے. نفاست کریم صاحب. مائک بند کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ویری گڈ. ماشاءاللہ. بہت اچھا. جناب آصف اقبال صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر. نہیں توڑیے اس کو. مد 10 ایسا کریے. مدثر الیین. ویری گڈ ماشاء اللہ. محمد تابش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیون. ماشاء اللہ بہت خوب. بشیر احمد گنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یذکر ہاتھ اٹھانا کیسا ہے جی؟ جمیل احمد صاحب مائک بند کریے پہلے. ہاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مائک بند کریے. جی پڑھیے بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ ویری گڈ. فرحان اختر خان. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر جی جی یذکر لمبا نہیں کھینچنا. را کو بہت نہیں کھینچنا تھوڑا. جی یذکر مزمل. نہیں مز توڑے اس کو توڑ کے پڑھیے. جی مزمل مدثر. نہیں توڑیے توڑی. اچھا توڑنا ہے جی. مدثر 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 مد جی مدثر الیین. الیین تین پیسز میں. جی جی الیین. اینا نہیں جی وائی کا وعدہ. اینا الی وائی کے ساتھ. جی اینا الی پورا پڑھیے. الیین جینا وائی ای. آپ خالی ای پڑھ رہے ہیں, وائی کو چھوڑ دے رہے ہیں. اچھا اینا اوکے. اینا نہیں جینا یا جی جی اینا یا وائی یا اینا جینا. ہاں آپ سنیے دوسرے پڑھتے وقت میں فالو کریے. محمد عباس صاحب مائک بند کریے. ہینڈ ڈاؤن کریے. جو لوگ پڑھ لیا ہینڈ ڈاؤن کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ویری گڈ ماشاء اللہ. مشتاق شاہ صاحب. مشتاق شاہ. جو لوگ پڑھ لیا ہینڈ ڈاؤن کریں. مائک بند کریں. اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الیون یذکر مزمل مدثر الیین. ماشاء اللہ. لیونا نہیں، آخری کا لیینا ہے. یین سر یین. لی پڑھیے پورا. لیین یین وائی. جی آغا اشرف صاحب، جناب آغا اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. صحیح نہیں پڑھا آپ نے پریکٹس نہیں کی کل گھر میں؟ وائس میسج سنا تھا آپ نے؟ جی پھر کریے پریکٹس اس کے ساتھ جا کے. 2 پیسوں میں پڑھو، اور آپ اتنے لوگوں کو سنیں، یہ لوگوں کو سن کے صحیح ہو جانا چاہیے. آپ کو 50 آدمی کو سن کے آپ صحیح ہو جانا چاہیے. یہ کلاس میں جو ہے کیا رہتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے. 50 آدمی رہے تو اور زیادہ سیکھتے. 50 آدمی پڑھتے نا تو سن کے صحیح ہو جاتا خود بخود. تو مشتاق میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل سر الیین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. آغا اشرف صاحب پڑھ لیا آپ؟ ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے. مدثر خاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل. میم پہ غنہ کریے. مزمل جی. مدثر الیین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ قرآن پڑھتے خود میں غنے آئیں گے، آپ چھوڑ دیں گے غنہ. کون بولیں گے آپ کو آ کے یہاں غنہ کرو بول کے؟ آپ کو خود کرنا ہے نا. ہاں پھر آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کے بولیں گا یا غنہ کرو یا یہ کرو یا وہ کرو؟ آپ کو خود کا آپ سیکھ لیے نا. آپ غنہ کیسا چھوٹ گیا آپ کا؟ نہیں، تجدید والے حرف پہ گناہ کرنا ضروری ہے. میم پہ اور نون پہ صرف. جی انشاءاللہ. اشز علی. اشز علی اندور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون یذکر مزمل مدثر الیین. اشاز علی آپ ایک بار پھر پڑھیں. پوری کلاس والے سنیں انہوں کیسا پڑھ رہے ہیں. پوری کلاس کے لوگ سنیں. پڑھے اشاز صاحب دیکھ. اشاز ایک بار پھر پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیون
यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लीयीन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। अब्दुल हामिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियून यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लियीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे अब्दुल हामिद साहब बोल। जमील अहमद साहब। माइक ऑन करें जमील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, आज हाथ भी उठाया आपने, माइक भी खोला है, बंद करा है। वेरी गुड, पढ़िए। इल्लियूना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लियूना यज़क्करु मुज़म्मिलु मुदस्सिरु इल्लीयीन। इल्लीयीना। कल आप वॉइस मैसेज सुन के प्रैक्टिस करे थे, होमवर्क सुने थे जी, और प्रैक्टिस करिए। आज दिन में अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छी लगाइए, टाइम लगा के बिल्कुल उसी स्टाइल में पढ़िए जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा और। मोहम्मद ताहिर साहब। मोहम्मद ताहिर, आपने हैंड रेस किया है, आप माइक खोल के पढ़े। आप कैमरा बंद करें, माइक खोले। मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब, नहीं पढ़ना है? और किसी को पढ़ना बाकी है? कोई छूट गए? सब लोग पढ़ लिए? माशाल्लाह। ताहिर साहब, आप नहीं पढ़ रहे? चले, हम क्या है, आज हम कोई, अब मैं आपको एक दूसरी चीज, कल जैसा मैं आपको बताया था कि आज हम जो है ये जो, हाँ, ये यही रखा हुआ है, ये आज के सबक के लिए था। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। आप देखेंगे, पहला सबक था हमारा हरकत सलासा, जबर जेर पेश, एक हरकत वाले थे, वो पढ़ लिया हम। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, 2 हरकत वाले थे, ये पढ़ लिया हम लोग। जज़म, ये पढ़ लिया हम लोग। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। उन्हें चाहे पीछे जाके हरकत को ढूंढता, जबर जेर पेश को ढूंढता, जहां मिला वहां से पकड़ के लाता हूं। याद रखें आप, मैग्नेट का काम करता है, पीछे जाके लाता। और तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता। तजदीद वाला हर्फ में से 2 हर्फ निकलते हैं। अगर आपके बा पे तजदीद है तो 2 बार निकलते। पहला बा साकिन, दूसरा बा हरकत वाला मुतहर्रिक। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक। तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते। हम क्या करें, तजदीद माल तजदीद भी पढ़ लिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हमारा रह गया 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको समझ गए ना तो पूरे कुरान में जो है तनवीन बहुत इस्तेमाल है। तनवीन का, तनवीन किसको बोलते हैं, तनवीन क्या है, तनवीन को कैसा पढ़ना, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तनवीन जो है, इसको 2 जबर 2 जेर 2 पेश को बोलते हैं तनवीन। हाँ, किसको बोलते हैं? 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन बोलते हैं। और जो है, एक मिनट, जी, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को बोलते हैं तनवीन। तनवीन बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? तनवीन।
दो जबर, दो जेर, दो पेश, और जिस हर्फ पे तनवीन होती है इसको बोलते हैं मुनव्विन। ये हर्फ मुनव्विन है। जैसे ये वाव पे अगर दो जबर है तो ये वाव मुनव्विन है, दो जेर है तो भी मुनव्विन, दो पेश है तो भी मुनव्विन। तनवीन जिस पे भी तनवीन होगी उसको बोलते हैं मुनव्विन। खैर ये तो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी की उतनी जरूरत नहीं है। हमको तनवीन क्या है पढ़ना है, तनवीन क्या है पढ़ना है। सब लोग गौर से सुने। ये देखिए, ये है, ये एक हर्फ है, ये दाल पे जबर है और ये नून साकिन है। ये नून क्या है? साकिन है। ये क्यों? इस पे सुकून है, जज़म है इस पे। नून क्या है? साकिन है। इसको कैसा पढ़ेंगे? ये जो नून है, ये जो जज़म है जाके जबर को पकड़ा, कैसा पढ़ेंगे? दन। कैसा पढ़ेंगे? दन, दन, दन। अरबी लैंग्वेज में, अरबी ग्रामर में वो लोग क्या करते हैं, ये नून साकिन को नहीं, दन जब भी नून साकिन आता कोई भी हर्फ के बाद, वो लोग क्या करते, इसको गिरा देते, इसको गिरा देते, इसको गिरा दे के क्या करते, इसके ऊपर और एक जबर लगा देते। वो एक जबर रहता ना, उस पर और एक जबर लगा देते। अब उसको अभी भी वैसे पढ़ते, दन। आप देखिए ये कैसा पढ़ते, ये कैसा पढ़ते हैं? दन, है ना। हम इसको दन पढ़ते। तो ये जो दूसरा जबर लगाए, ये जो दूसरा जबर लगाए, ये जो है जज़म, ये सारी नून साकिन की जगह है। ये पूरा नून साकिन को निकाल के एक और एक जबर लगाए, तो कैसा पढ़ रहे हैं इसको? दन। पहले क्या पढ़ रहे थे? पहले क्या पढ़ रहे थे? दा। और एक जबर लगा दिए तो क्या पढ़ रहे? दन। तो ये जो दूसरा जबर लगाए, ये दूसरा जबर जो है ये नून साकिन की जगह लगाई है, नून साकिन की जगह है वो दूसरा जबर। वो लिखने की सहूलत के खातिर नून नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, उसी जबर के बाजू और एक जबर लगा दिए, दो जबर कर दिए उसको। अब फॉर एग्जाम्पल समझ गए ना आप समझो, ये जो है दिन। ये क्या है? ये नून साकिन है और ये क्या है? जेर है। दिन, दिन। वो लोग क्या करे, इसको गिरा दिए, इसको गिरा दे के यहाँ और एक जेर लगा दिए, जाओ दिन। अभी भी वैसे पढ़ते हो उसको। तो ये जो दूसरा जेर है, ये जो दूसरा जेर है, ये जो दूसरा जेर है, ये नून साकिन की जगह है। ये नून साकिन की जगह है। अब कैसा पढ़ रहे हैं इसको? अभी भी वैसे पढ़ रहे, दिन, दिन, है ना। दो जेर रहे तो भी दिन पढ़ रहे, है ना। अब देखिए, ये दाल पे पेश है, ये दाल पे पेश है, दू। और अगर यहाँ पे नून भी आ गया और ये नून साकिन है, इसको पढ़ेंगे दुन, दुन। उन्हें क्या करा, ये नून को गिरा देके यहाँ और एक पेश लगा दिया, दुन। तो ये दूसरा पेश और ये दूसरा जबर और ये दूसरा जेर नून साकिन की जगह लगा दिया उन्हें, और क्या बना दिया। अब देखिए, ये यहाँ और एक बार बताऊंगा। ये देखिए, ये है दन, है ना। यहाँ पे क्या है? दो जेर है, ये बराबर, दोनों सेम है। ये भी दन है, ये भी दन है। दो जबर लगा दिए, वो नून साकिन की जगह और एक जबर लगा दिए। ये है दिन, ये है दिन। उन्हें क्या करा? दो जेर लगा दिया, दिन। इसको भी वैसे ही पढ़ रहे, दन, दिन। और ये क्या है? ये है दुन, दुन। ये क्या है? ये भी दुन है, दो पेश लगा दिया, दुन। तो अरबी में जहां जहां तनवीन आई है, जहां पे भी दो जबर आए, दो जेर आए, दो पेश आए, आज समझ जाना, ये जो दूसरा जबर है नून साकिन की जगह पे है। एक जज़म वाली नून लिखने के बजाय और एक जबर लगा दिया उन्हें, दो, है ना। नून साकिन लिखने के बजाय और एक जेर लगा दिया, नून साकिन लिखने के बजाय और एक पेश लगा दिया, है ना। ये जो दूसरा जबर है इसमें, वो नून साकिन की जगह पे है। ये जो दूसरा जेर है, ये नून साकिन की जगह पे है। ये जो दूसरा पेश है, ये नून साकिन की जगह पे है। पढ़ने में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वैसे ही है। तो उन्हें क्या करा, कुरान में समझो 5000 से ज्यादा ही होंगे, दो जबर, दो जेर, दो पेश, 5000 होंगे अंदाजन। मैं अंदाजन बोल रहा हूँ,
5000 होंगे। तो अब क्या हुआ, 5000 बार नून साकिन लिखना पड़ता था हमारे को। 5000 बार नून साकिन लिखे तो क्या होता था, कम से कम 50 सफ़े और बढ़ जाते थे और मोटी हो जाती थी कुरान, है ना। एब्रीवेट करने से क्या हुआ, आप एक जबर लिखते, उसी जबर के बाजू उन्हें और एक जबर लिख देता, जगह नहीं लगती। तो एक जेर रहती पहले से, है ना, उन्हें क्या करता, उसी जेर के नीचे और एक जेर लगा देता। एक पेश रहती, उन्हें उसी पेश के बाजू और एक पेश लगा, जगह लगती नहीं, उसमें जगह नहीं लगती ज्यादा, उसी जबर को बाजू 2 जबर हो जाती। लेकिन अगर नून साकिन लिखे आप, नून साकिन लिखे तो कितने नून साकिन लिखना, तो आप 5000 नून साकिन होंगे। तो क्या होता, बहुत बड़ी हो जाती कुरान। एक एब्रीवेटेड है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये है ना, उसको मुख्तसर कर दिया उन्होंने, उसको यानी एकदम छोटी जगह पे बहुत काम कर दिया उन्होंने। तो जब भी कुरान में 2 जबर 2 जेर 2 पेश आती है, उसमें एक तनवीन रहती है, उसमें एक नून साकिन रहती है, हमेशा उसके अंदर एक नून साकिन छुपी हुई रहती है। ये दूसरे जबर में, और ये दूसरे जबर में, और ये दूसरी जेर में, और एक दूसरी पेश में एक नून साकिन है। नून साकिन का काम कर रही है उन्हें, समझ गए ना आप। ये तनवीन को हमेशा आप पढ़ते वक्त में सोचना, इसके अंदर एक नून साकिन है ना। अब जैसा ये बुन है, ये कैसा पढ़ते हैं हम इसको, ये बा है, ये बा पे पेश है, ये नून साकिन है, बुन। अब क्या करता हूं, अब ऐसे लिख देता, खत्म, बुन। एक ही बा में काम हो गया, खाली 2 पेश लगा दिया उन्हें, है ना, इसी पे 2 पेश लगा दिया, बा पे, बुन। वैसी तुन है, सुन है, रन है, लुन है, पूरे हरफों को उन्हें 2 जबर लगाता, 2 जेर लगाता, 2 पेश लगाता, जैसा जहां जरूरत है वैसा कर देता। शॉर्ट फॉर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म। आप क्या करना, हमेशा इसकी ब्रैकेट खोल के पढ़ना, है ना। आपको मालूम रहना है, ये बुन पढ़े तो आपको मालूम रहना है, एक बा है, एक बा है पेश वाला, और एक नून साकिन है। ये इसकी ब्रैकेट, तनवीन की ब्रैकेट खोले तो कितने हर्फ निकले, 2 हर्फ निकले, है ना। पेश है तो पेश तो आ जाएगा, और एक नून साकिन आ जाएगा, हाँ। और अगर ये बन है तो आप इसकी ब्रैकेट खोले तो क्या निकलेगा, एक बा पे जबर निकलेगा, एक नून साकिन निकलेंगे। और ये बुन है, इसकी ब्रैकेट खोले तो क्या निकलेगा, इसकी ब्रैकेट खोले तो एक बा पे पेश निकलेंगे, एक नून साकिन निकलेगा। तनवीन वाले की ब्रैकेट खोले तो 2 हर्फ निकलेंगे। तनवीन, जो भी तनवीन है, जबर 2 जबर रहने दो, 2 जेर रहने दो, 2 पेश रहने दो। 2 पेश रहे तो एक पेश निकलेगा, एक नून साकिन। 2 जेर है तो एक जेर निकलेगा, एक नून साकिन। 2 जबर है तो एक है ना, 2 जबर है तो एक जबर वाला निकलेगा, एक नून साकिन। नून साकिन तो लाजमी है। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि तनवीन में हमेशा ये 2 जबर 2 जेर 2 पेश में एक नून साकिन छुपा हुआ है, एक जज़म वाली नून छुपी हुई है। आपको सबको मालूम है। कोई सवाल करना है, कोई बात कर रहा है तो मेरे से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, कभी कभी क्या होता है, कभी एक सीधा पेश और एक उल्टा पेश होता है एक साथ। हाँ जी, उसको भी हम ट्रीट करेंगे। वो जो है, ये हमारे अरबिक, हमारे उर्दू फॉन्ट में क्या है, उर्दू टाइपराइटर पे उनके पास 2 पेश ऐसा लिखने का नहीं है। वो लोग ऐसा लिखते हैं, ये 2 पेश है, एक पेश सीधा, एक पेश उल्टा। अच्छा, ये भी सेम है, सेम 2 पेश ही है। अरबी कुरान वाले क्या करते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। अरबी कुरान वाले कभी 2 पेश सीधे लिखते, कभी एक सीधा एक उल्टा भी लिखते। तो उन लोगों का उसमें एक इशारा रहता हुआ, आगे चल के जब हम और कायदे पढ़ेंगे तो जब समझ में आएगा वो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक पेश सीधा, एक पेश उल्टा रहा, अभी तो वो 2 पेश ही है। मतलब ये तनवीन है, तनवीन ही है। ये 2 पेश की जगह उन्हें ऐसा लिख, हमारे उर्दू टाइपराइटरों में ऐसे ही बना हुआ है, एक ऐसा ही बना हुआ है। तो आप ये 2 पेश है समझना। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। तो इससे कोई फर्क नहीं है, 2 पेश है, 2 जबर 2 जेर तो वैसे ही रहते, कोई मसला नहीं है। और किसी को कोई सवाल, डाउट है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी, आप सुकून
डबल जेर या दो जबर दो जेर या दो पेश के आगे सुकून है, सुकून ने जैसा वो क्या बोलते हैं तस्दीद रहा तो भाई तस्दीद रहा तो हम दो जबर दो जेर दो पेश क्या है पढ़ रहे हो। हाँ ना, उसके आगे तस्दीद वाला आएगा जब बताएंगे, देखेंगे वैसे इंशाल्लाह। वो आप पहले से नहीं सोचना आगे ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो आगे का आगे देखेंगे। अभी आप दो जबर दो जेर दो पेश को समझने का वक्त है अभी, यानी अभी हमारा सबक जो डील कर रहा वही आगे जैसे जैसे आएगा हम पढ़ते जाएंगे ना, कुरान पूरा पढ़ेंगे ना, पूरे सूरे पढ़ेंगे, तो जैसा आएंगे हम बताएंगे यहाँ आप क्या करना है। तो वैसी कोई सिचुएशन नहीं है आप जो पूछ रहे हैं, वो एक आपका ख्याली वो है, वो कुछ भी नहीं होता। तजदीद आई तो हम पढ़ सकते हैं, वो वैसा आएगा तो वो सिचुएशन आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है इंशाल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम हजरत, ये मैं जानना चाहता था, ये जो तनवीन है सिर्फ नून के साथ ही इसका लेन देना या किसी भी हरफ पे आ सकता है? ये देखिए, ये जो दूसरा जबर है नून साकिन है, बस वो किसी के साथ भी आ सकता, मीम पे भी आ सकता, नून पे भी आ सकता है ना। ये दो जबर किसी 28 हर्फ पे किसी पे भी आ सकते, दो जबर दो जेर दो पेश कोई भी हर्फ पे आ सकते। शुक्रिया हजरत। कोई भी हर्फ पे आ सकते हैं, जैसा लफ्ज बनेगा, जैसा कलमा बनेगा, जैसा यानी जो मानो वाला का आपकी जरूरत रहेंगी, जो टेक्स्ट के लिहाज से जो भी मैसेज चलते रहेगा, जो भी लैंग्वेज में जो भी बात हो रही, वहाँ पे जो भी गुफ्तगू हो रही, वो उसके लिहाज से उन्हें लिखते रहेंगे, तो हम उसके लिहाज से जो है उसके लिहाज से उसको पढ़ना। जी हजरत शुक्रिया। तो तनवीन हम क्या करें, आज हम तनवीन पढ़े। तनवीन का मैं आपको बताया, हम पहले जबर जेर पेश पढ़े हरकत सलासा, हम खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश पढ़े, ये 2 हरकत थी। इसकी मकदार कितनी थी? इसकी मकदार 1 हरकत थी, इसकी मकदार 1 हरकत थी, इसकी मकदार 2 हरकत थी। जज़म कैसा पढ़ते हम बताए, तजदीद कैसा पढ़ते हम बताए, तजदीद माल तजदीद। आज हम क्या पढ़े? आज हम 2 जबर 2 जेर 2 पेश जिसको तनवीन बोलते वो पढ़े। ये 2 जबर के अंदर क्या है, 1 जबर तो ओरिजिनल है और 1 नून साकिन है। 2 जेर में क्या है, 1 जेर तो ओरिजिनल है और उसके साथ नून साकिन है। 2 पेश क्या है, उसके साथ 1 पेश तो ओरिजिनल है, एक कोई भी हर्फ अलीफ से लेके या तक 28 हर्फों में से किसी पे भी 2 जबर आ सकते, 2 जेर आ सकते, 2 पेश आ सकते। वहां पे वो टेक्स्ट के लिहाज से वर्ड, जब जो भी वर्ड आने वाला है उसके लिहाज से वो चलते रहेगा, हम वो पढ़ेंगे। अब हमारा क्या टारगेट है? अब हमारा टारगेट है ये आखिरी का, ये हम अभी पढ़ेंगे, ये थोड़ा एक लेसन के बाद पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं मद। एक बड़ा मद है, एक छोटा मद है। आप देख रहे हैं ना, एक मोटा थिक है और एक पतला है। ये हम इसको बोलते हैं मद। इसको क्या बोलते हैं? मद। ये जहाँ पे भी रहता है उसको जरा खींच के पढ़ते हैं, लंबा करते, स्ट्रेच करते, स्ट्रेच खींच के पढ़ते। वो क्यों करते? ये मद कब लगाते कुरान में? ये मद कब आएगा? कितने किस्म के मद है कुरान में? ये पूरी तफसील जो है जब हम मद का सबक पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। अभी उतनी जल्दी नहीं है, हम इसका एक दो सबक के बाद हम इंशाल्लाह ये मद भी पढ़ेंगे, तो हमारे पूरे हो जाते। जितने भी आराब है, जितने भी साइन है, जितने भी निशानियां ऊपर नीचे लगते हरफों पे, पूरे खत्म हो गए। जेर जबर पेश लगता खत्म हो गया, उल्टा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश लगता खत्म हो गया। जज़म, तजदीद, तनवीन, मद हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लिए। सबको समझ में आ गया ना तनवीन क्या है? अच्छा समझ में आ गया, माशाल्लाह। तनवीन बोलते हैं इसको, जिस हर्फ पे तनवीन है उसको बोलते हैं मुनव्विन। खैर उतनी टर्मिनोलॉजी की कोई पूछता नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 2 जबर को अच्छी, आप 2 जबर वाले हर्फ की मैं आपको बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, मैं आपको बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, ये है ता, इस पे जबर है और ये नून साकिन है। मैं बोला इसकी ये तन, अच्छा ये तो पूरा आप क्या करें, तन, इसकी ब्रैकेट खोले तो ऐसा होता है। एक जबर वाला ता निकलता है, एक नून साकिन निकलता है। कंपलसरी तनवीन वाले में हमेशा 2 जबर है तो 1 नून साकिन, 2 जेर है ता पे तो 2 जेर है तो एक ता जेर वाला, एक नून साकिन।
अगर इस पे दो पेश है तो एक था पेश वाला, एक नून साकिन, समझ गया ना? एक सा है ना, दो जबर है, दो ज़ेर है, एक नून साकिन निकलता ही निकलता। कोई भी हर्फ रहने दो, अलीफ बा ता सा जीम हा का, पूरे 28 हर्फों में सेम सिस्टम, सेम फार्मूला काम करता, सेम चीज काम करती। तो कोई इसमें, अब आपको अच्छा मालूम है ना तनवीन में क्या हो रहा, क्योंकि आगे चल के हम इसकी ब्रैकेट खोल के पढ़ने वाले हैं, और इसको कैसा पढ़ना है वो भी, इसके बहुत बड़े अहकामात है जो आगे आने हैं। अहकाम में नून साकिन और तनवीन एक बहुत बड़ा सबक आने वाला है आगे चल के, एक लेसन, जब हम देखेंगे कि तनवीन को कुरान में कैसा पढ़ना है, उसके पढ़ने के कई तरीके, तो वो डिटेल में पढ़ना है हमारे को आगे। आपको तनवीन मालूम नहीं तो वो सबक आपके लिए आसान हो जाता, तो आपके तनवीन आप बिल्कुल अच्छा मालूम हो गया आपको। अब एक दूसरी चीज बता रहा हूँ मैं, ये आज के दो चीजें आपको बताऊंगा बोला था मैं। एक तो ये बता दिया, तनवीन बता दिया मैं। एक तो हम तजदीद माल तजदीद की आज प्रैक्टिस कर लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और क्या करे, और जो है तनवीन पढ़े हम आज, है ना। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये सबक का नाम है वक्फ के अहकाम। यानी कुरान में आप रुकेंगे तो कैसा रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो, वक्फ करना बोलते हैं उसको, ठहरना, हाउ टू स्टॉप, वक्फ करना। अहकाम में वक्फ, रुमूज औखाफ बोलते हैं, रोकने के रुमूज, रोकने के कायदे, वक्फ। ये हम तफसील से बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा ये चैप्टर, अच्छा तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा उसके जो जरूरी चीजें बताती, क्योंकि हम सूरे पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना क्या करना है, रोकना कैसा है, रोकना कैसा है, कहीं भी रोके तो कैसा रोकना, कहाँ कहाँ रोक सकते, कहाँ कहाँ नहीं रोक सकते, कहाँ रोकना जरूरी है, कहाँ नहीं रोकना है ना। ये तमाम चीजें थोड़े मैं आपको ब्रीफ बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है रुकने का तरीका, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। कोई भी एक सूरा है, मैं आपको सबसे पहले सूरे में ला लेता हूँ। सबसे पहला सूरा सूरे बकरा। हर आयत पे रोकना जो है, हर आयत पे रोक के नई सांस लेना। अब देखिए ये आयत चल रही जो रेड कलर की आपको नजर आ रही, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मैं क्या करा, ये युनफिकून के नून पे जबर था, मैं क्या करा, रोकने के वास्ते जबर निकाल के वो नून पे जज़म लगा दिया। जब भी रोकना है तो आप क्या करना, उसका जेर जबर पेश निकाल के जज़म लगा देना और रोकना। युनफिकून, आप देखे तमाम कारियां, इमाम साहब पूरा जो है ये रूल फॉलो करते सब लोग। और ये आयत पे रुक के क्या करते, सांस लेते फिर, क्योंकि आप एक आयत से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, उतनी सांस नहीं रहती हम लोगों की। बल्कि हम लोग तो एक आयत के बीच में दो तीन चार बार रुक जाते, गलत पढ़ते, ये करते वो करते। तो क्या करते हम लोग, युनफिकून, नून पे का जबर निकाल दे के जज़म लगा दी, युनफिकून, समझ गया ना। क्या करना है, अब आपको एक रूल मालूम हो गया, हर आयत पे रोकना है, और उसके जो आखिरी कलमा है, यहाँ पे आखिरी कलमा क्या है, युनफिकून। आखिरी कलमे के आखिरी हर्फ पे जो भी जेर जबर पेश है उसको निकाल के उसको साकिन कर देना। साकिन करना मतलब उसको जज़म लगा देना और रोकना। जज़म लगाए तो रोक सकते आप। अब आप ऐसा नहीं पढ़ना, युनफिकूना पढ़ के नहीं रोकना, युनफिकूना पढ़ के नहीं रोकना, जबर से नहीं पढ़ना उसको रोकने के लिए। रोकने की हालत में जबर नहीं पढ़ेंगे, उसको साकिन करेंगे, समझ गया ना। रोकने की हालत में उसका जेर जबर पेश नहीं पढ़ेंगे, उस पे जज़म लगा के रोकेंगे हमेशा। एक बात होगी। दूसरी आयत है ये, हाँ दूसरी चलो यही आयत है, वल्लज़ीना, उसके बाद वाली ये आयत बता रहा हूँ, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मैं यहाँ पे रोक लिया, मेरी सांस खत्म हो गई क़ब्लिक पे। क्यों, वहां आप रोक सकते हो, वो रोकने की जगह है वो भी। यानी बहुत लंबी आयत रहे तो उन्हें क्या करता है बीच में, जैसे ये जीम है, ये जीम है, यहाँ पे क्या है, जीम है। ये जीम क्या है, वक्फे जायज की अलामत है, यानी रोक सकते हैं, ये वैलिड स्टॉप है, वक्फे जायज।
वक्फ जायज, ये जायज का जीम लगाया हमने, आप रोक सकते हैं, रोक के सांस ले सकते हैं आप। ये जैसा हमारे जो इंग्लिश में जो है, समझो आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये आपको आसान समझ में आता है बताए तो, ये आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, अच्छा इंग्लिश इधर से चलती, इधर से यहाँ आके आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाते हैं आप, कॉमा जिसको बोलते हैं, है ना। फिर लिखते फिर यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं आप, यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। ये फुल स्टॉप क्या है, ये फुल स्टॉप क्या है, ये हमारे पास ये आयत है, और ये कोमा क्या है, हमारे पास जो है ये वक्फ जायज है ना। दूसरे ये सेंटेंस के बीच में आते ही वो है ना, ये सेंटेंस, ये जितने बता रहा हूं मैं, ये जीम है, एक तो ही आता, वक्फ मुतलक बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वक्फ मुतलक। ये भी यहाँ पे भी रुकने इजाजत है, यहाँ रुक के आप सांस ले सकते हैं। तो ये भी जो है बीच में आता है कभी कभी आयत के, जैसा कोमा आया, जैसा सेमीकोलन आता, जैसे कोलन आता, इंग्लिश में भी बहुत से चीजें हैं। इसमें क्या है, ये जीम आता, वक्फ जायज आप रोक सकते, वक्फ मुतलक तो आता, आप रोक सकते हैं, यहाँ पे सांस ले सकते, है ना। बहुत लंबी आयत रही तो लोग बीच में कॉमा लगाते, जैसा वहां पे एक बात पूरी होते रहती, फिर उन्हें कुछ बोलना रहता तो वहां पे कोमा लगाते, जैसा हम वैसी वो लगा जो है वहां पे वक्फ जायज और वक्फ मुतलक चलते रहते। बस 3-4 अभी पूरी तफसील नहीं बता रहा हूं मैं। एक तो क्या रुकना है, आपको आयत पे रुकना है ना, एक तो आयत पे रुकना है, और एक जो है जहां पे जीम है वक्फ जायज पे रोक सकते हैं आप, और एक तो है वक्फ मुतलक पे आप रोक सकते हैं। एक है मीम, ये 3-4 बड़े बता रहा हूं। ये मीम पे जो है इसको बोलते हैं वक्फ मुतलक, सॉरी वक्फ लाजिम। वक्फ लाजिम माने कंपलसरी, ये लाजिम का मीम से बनाया ही नहीं है, लाजिम के मीम से बनाया इसको। ये बीच में कुरान में ये बीच में आता मीम, जहां पे मीम आया वहां पे कंपलसरी रोकना। आप यहाँ पर आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ये वक्फ मुतलक में भी आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, अगर आपकी सांस है तो आप कंटिन्यू कर सकते। इवन आयत पे भी मिला के पढ़ सकते हैं, अगर आपकी सांस बहुत अच्छी है, 2 आयतों को मिला के भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी पढ़ते इमाम लोग हजरत, खारी हजरत कभी कभी पढ़ते, उनकी सांस बहुत लंबी रहती। लेकिन एक आम इंसान, एक हमारे वैसा स्टूडेंट, हमेशा हम एक ये सुन्नत भी है, हर आयत पे रोक लेना, नई सांस लेना, क्योंकि आप वो सांस में दूसरी आयत नहीं पढ़ सकते, फिर जाके बीच में रुक गए तो भी खराब जगह रुक जाते हैं, जहाँ नहीं रोकना है वहां रुक जाते हैं, सांस खत्म हो जाती। तो जो है ये रोकने की ये 4 चीजें मैं बता रहा हूँ। हर आयत पे रोक लेना, वक्फ जायज आया तो आप रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते। रोके तो यहाँ पे इजाजत है, आपको इसमें भी इजाजत है, आप रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा और भी अलामत है, जब मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा। अब अभी मैं आपको ये वक्फ लाजिम पे स्टॉप है, ये स्टॉप कंपलसरी स्टॉप है ना। मैं आपको कुरान बता रहा था, मैं आपको कुरान से मिसालें बताऊंगा। जैसे उमा उनजिला मिन क़ब्लिक, क़ब्लिक बोल के मैं क्या करा, काफ पे जबर था, हटा के काफ को साकिन कर दिया, मिन क़ब्लिक। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, नून का जबर निकाल के साकिन कर दिया, है ना। साहब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। कभी कभी आयत तो क्या होता है कि ला होता है, ला। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहूँ है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। ये जो ये सॉरी, एक मिनट, ये है ना, ये आयत चल रही, यहाँ पे आके यहाँ ला लिखा हुआ है, और ये आयत फिर चल रही। जहाँ पे ला आया वहां नहीं रोकना, यहाँ नकोरो को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में और सब्जेक्ट, वो जो सेंटेंस चल रहा माने खराब हो जाते हैं वहां रोके तो। ये ला पे नहीं रोकना, ला आया तो डोंट स्टॉप। ला माने नहीं, ला के माने जो लोग गल्फ में रह के जिनको मालूम है, ला माने नो बोले ऐसा, ला माने ला नहीं, है ना। ला पे नहीं रोकना। अगर आप रुक गए, आपकी सांस खत्म हो गई, क्या करते, रुकना ही पड़ता।
रुक गए तो क्या करना, आप ये आखिरी में जो भी कलमा था उसको साकिन कर देना, और आप यहाँ पे सांस खत्म हो गई बोल के रुक गए तो आप क्या करना है, यहाँ से फिर पीछे से आना, ये एक 2-3 कलमे पीछे से आके निकल जाना। फिर अगर आप रुक गए तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आपकी सांस खत्म होगी तो क्या करेंगे आप, ऐसी सूरत में आप पीछे से आना, पीछे से आके, और यहाँ पर ये ला पे नहीं रोकना बहरहाल, अगर रुक गए तो पीछे से आना 7:30 में आएंगे। और अगर ये आयत चल रही, यहाँ पे क्या है, आयत खत्म हो गई यहाँ पे। अब कोई भाई माइक बंद करके बात करिए ना जी। ये यहाँ पे इसके ऊपर भी ला लिखा हो रहा था, बाद ये आयत के ऊपर भी ला लिखा हो रहा था, यहाँ पे आप रोक सकते हैं, आयत है तो रोक सकते हैं, मिला के पढ़ना चाहे तो मिला के भी पढ़ सकते, लेकिन ये बीच में आ गया तो कभी नहीं रोकना, बीच में आ गया तो यहाँ नहीं रोकना, अगर सांस खत्म होगी तो रोक के पीछे से आना फिर। लेकिन यहाँ पे जो है आप रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते, आयत के ऊपर आया तो आप रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते, लेकिन आयत के बीच में आ गया तो यहाँ नहीं रोकना, यहाँ पे नहीं रोकना, यहाँ पे रोक भी सकते और नहीं भी रोक सकते। और यहाँ पर अगर आप रोक दिए, सांस खत्म होने की वजह से रोके, तो आप पीछे से आना। और एक बता रहा हूं मैं, आप एक आयत पढ़ रहे यहाँ पे आके आपकी सांस खत्म हो गई, यहाँ पे आके आपकी सांस खत्म हो गई, क्या करेंगे आप, जैसे ही सांस खत्म हो गई, ये जो आखिरी कलमा था, आप आखिरी कलमे के आखिरी हर्फ को आप साकिन कर देंगे, मतलब जज़म लगा के रोकेंगे। सांस खत्म हो गई, क्या करेंगे, रोक दी, रोक के क्या करना, फिर शुरू करें, नई सांस लगी, थोड़ा पीछे से आना, थोड़ा एक दो तीन कलमे पीछे से आना, 2-3 कलमे पीछे से आके आगे बढ़ जाना। अगर आपकी सांस खत्म हो गई, आप रुक गए बीच में आयत के, तो आप एक तो साकिन करके रोकना वहां के हर्फ को, और फिर पीछे से आके मिला के पढ़ना, और जहां आयत खत्म हो रही वहां जाके रोकना, या फिर जहां वक्फे जायज है वहां जाके रोकना, या वक्फे मुतलक है वहां जाके रोकना, है ना। और अगर कुरान पढ़ते पढ़ते आपको, आप देखिए यहाँ पे वक्फे मुतलक है, ये आपको दिख रहा, आप यहाँ रोक सकते है ना, आयत के खत्म पे रोक सकते हैं, या वक्फे जायज है, वक्फे मुतलक है, मैं आपको बताना, और बहुत से निशानियां हैं, मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा इसके रोकने के अहकाम, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मीम आ गया तो आप रोकना ही रोकना, उन्हें लिखता मीम बोल के, कहीं आ गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, मीम आ गया तो आप मुंह पे वक्फे लाजिम है, वो रुकना ही रुकना है। ये बहुत से किस्म के अहकाम है, जैसे यहाँ ला है, खाफ है, जीम है, जीम और तो बहुत कसरत से आते, यहाँ रुकू आ गया तो ऐन डाल दिया, कहीं पे मीम आ गया तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप रोकना ही रोकना, मीम आ गया तो जरूर रोकना, वो वक्फे लाजिम बोलते हैं उसको, वक्फे लाजिम माने रोकना ही रोकना है, यहाँ पे लाजिम माने कंपलसरी। तो इत्तेफाक से वो बात बहुत जगह है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा कोई आ गया तो आपको बताऊंगा, उसमें क्या है, वक्फे लाजिम में आपको यहाँ कंपलसरी रोको बोल रहा हूँ, कंपलसरी रोको, खैर मैं आपको निकाल के बताऊंगा बाद में क्या करना है वहां पे। अब जैसे जी, ये आयत चल रही, यहाँ पे लिखा हुआ है मीम लिखा हुआ है, आप क्या करना है, यहाँ रोक लेना, यहाँ रोक के फिर यहाँ रोक लेके यहाँ आके यहाँ रोक के फिर यहाँ से पढ़ना, यहाँ रोकना कंपलसरी है बोल रहा हूँ, ये मीम पे रुकना, ये वक्फे लाजिम मीन्स कंपलसरी। यहाँ पे क्यों, यहाँ नहीं रोके आप तो क्या होता, बाज़ वक़्त माने बदल जाते, कैसा, जैसे आपको मैं उर्दू में समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा हूँ, ठहरो मत जाओ, क्या बोल रहा हूँ, ठहरो मत जाओ, इसका मतलब है स्टॉप, डोंट गो। क्या लिख रहा हूँ, स्टॉप, ये है ठहरो माने स्टॉप, डोंट गो, ठहरो मत जाओ। अगर आप क्या करें, यहाँ ठहरो बोल के नहीं रुक रहे आप,
آپ کو ہم کو عربی معلوم نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ یا رک رہے، ٹھہرو مت جاؤ، الٹا ہو گیا نا، ٹھہرو مت جاؤ الٹا ہو گیا. حالانکہ انہیں بولنا چاہ رہا تھا ٹھہرو، اسٹاپ، ڈونٹ گو. اگر آپ یہاں نہیں روکے آپ اور یہاں آ کے رک گئے آپ مت پہ، ٹھہرو مت جاؤ، اس کا مطلب ہے ڈونٹ اسٹاپ، گو، الٹا ہو گیا نا. تو اسی لیے جہاں پہ میم رہتا وہاں پہ روکنا رہتا تو معنی بدل جاتے. اگر آپ ٹھہرو پہ نہیں روکے تو ٹھہرو مت ہو جاتا، وہ جاؤ یعنی جانے کا حکم ہو رہا اور ٹھہرو مت بول رہا. لیکن اگر آپ ٹھہرو پہ بول دیے تو اس کا مطلب ہے اسٹاپ، اور ٹھہرو مت بولے تو ڈونٹ اسٹاپ، تو معنی بدل جاتے. تو جب بھی میم آتا آپ ٹھہرنا وہاں پہ. اس لیے وہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا رہتا، باضابطہ میم لکھا ہوا رہتا، اور مارجن کے اندر مارجن بولے تو کیا رہتا، یہ قرآن کا پیج ہے، یہ پوری آیتیں چل رہی ہیں، قرآن چل رہا 13 لائنیں 14 لائنیں کتنے بھی لائن. یہاں پہ وقف لازم آ گیا یہاں پہ، تو انہیں یہاں کا مارجن میں کیا لکھتا ہے، یہاں پہ لکھتا انہیں وقف لازم ہے، یہاں بول کے یہاں پہ مارجن کے اندر لکھتا انہیں یہاں وقف لازم ہے، روکو بول کے. یہاں میم لکھ کے یہاں پہ بھی لکھتا انہیں یہاں وقف لازم ہے، ٹھہرو کمپلسری ہے نا. یہ مارجن بولتے اس کو، یعنی پیج کے باہر لکھنا، ادھر بھی لکھ سکتا ہے یا ادھر بھی لکھ سکتا، رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ. آپ دیکھے ہوں گے قرآن میں دونوں طرف رہتا، یا پہ اگر ربا آ گیا تو ربا رہتا، رکو آ گیا تو رکو رہتا، بہت سی چیزیں رہتے ہیں مارجن میں لکھے ہوئے، ہے نا. تو یہ وقف لازم کی علامت ہے. میم کیا ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے. جیم کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے. لا بولے تو نہیں روکنا، ہے نا. وقف تو یہ کیا ہے؟ وقف مطلق کی، اور یہ کیا ہے؟ آیت کی علامت ہے. یہ گول کیا ہے؟ آیت کی علامت. ہر آیت پہ روک کے سانس لینا سنت ہے. آپ ہر آیت پہ روکیے، نئی سانس لیجیے، آرام سے پڑھیے. اور یہ کیا ہے؟ اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ کیا ہے؟ پہلے پرانے قرآنوں میں، آج سے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے کے قرآنوں میں کیا ہے؟ یہاں پہ ایسا لکھا ہوا تھا، یہ آیت چل رہی آیت آ کے ختم ہوئی، یہاں پہ ایسا تھا. یہ آیت کا تا ہے، یہ تا جو گولتا بولتے اس کو، تا مربوطہ بولتے اس کو، میں بعد میں سمجھاؤں گا. ایسا لکھا ہوا تھا پہلے کے قرآنوں میں. اب ان لوگ کیا کرے، اب آہستہ آہستہ ہم لوگ ذرا ایڈوانس ہو گئے. ایڈوانس ہو کے کیا کرے، اس کے نقطے غائب کر دیے، اس کے نقطے خواب پھر ایسا لکھنے لگے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا کرے، اس کے چوٹیاں بھی کاٹ دیے، اس کے چوٹیاں کاٹ کے اب اس کو گول کر دیے. یہ تا ہے اصل میں. اور گول کر کے اب اس کے اندر کیا کریں، آیت نمبر لکھ رہے ہیں 3 4 5 6 آیت. یہ اصل میں تا ہے، یہ اصل میں یہ تا ہے، آیت ختم ہونے کا تا ہے. آیت کیسا لکھتے ہیں آپ؟ آیت تا پہ ختم ہوتی ہے آیت. تو یہ جو تا ہے، یہ تا ہے، یہ آیت کا تا ہے. تو یہ جو گول دائرہ ہے، یہ جو آیت کے ختم پہ جو دائرے آ رہے ہیں آج کل قرآن میں جو آیت کے ختم پہ جو دائرے آ رہے ہیں، یہ تا ہے اصل میں. یہ ہم لوگ کیا کریں، اس کے نقطے بھی گرا دیے اور اس کے چوٹیاں بھی کاٹ دیے. ابھی نہ گول ہو گئی، بالکل ماڈرن آیت ہو گئی. اور اس کے اندر ہم آیت نمبر بھی ڈالنا شروع کر دیا، ہے نا. 3 4 5 6 جو بھی آیت ہو رہی نمبر بھی ڈالتے. تو یہ تا ہے اصل میں، یہ تا ہے. یہ گول نشان کیا ہے؟ تا کا نشان ہے. تو اس پہ روک کے سانس لینا. وقف جائز پہ آپ روک سکتے، آپ کی سانس ختم. آپ ہمیشہ روکنے کے مقامات آئے تو روک کے فریش سانس لے کے آرام سے اچھا پڑھنا، بھاگنا نہیں. جیسے وقف مطلق ہے اب روکیے، وقف جائز ہے روکیے، وقف لازم ہے یا تو روکنا ہی روکنا ہے نا. اس کے علاوہ لا ہے مت روکیے. اس کے علاوہ اور بہت سے نشانیاں آتے ہیں، خاف ہے، زا ہے، صلے ہے، صلاح ہے، اور کیا ہے بھائی، کاف ہے، زا ہے. میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا یہ تمام چیزیں کیا ہے. ہم جب اس کا سبق پڑھیں گے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں. ابھی میں جو ضروری چیزیں ہم کو تلاوت کرنے کے وہ بتانے کے لیے آج میں بتایا، کیونکہ ہم پڑھتے وقت میں ہم کو معلوم رہنا کیسا پڑھنا ہے. ہم کو پڑھتے وقت میں معلوم ہونا ہے کیسا پڑھنا ہے. آپ کو میں اس سے بتاتا ہوں. ہم 30واں پارہ پڑھ رہے اب جیسا یہاں پہ ہے، یہاں تھوڑا بتایا ہمیں، ہے نا. الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोक लिया मैं यहाँ पे, नून का जबर निकाल के रोक लिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पेश था यहाँ पे, मैं निकाल के साकिन कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, मैं क्या करा, दो पेश निकाल के जज़म लगा दिया, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो है हाँ बोर्ड पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूंगा। ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आयत खत्म हो रही है, यहाँ पे सल्ला, यहाँ पे खड़ा जबर है, इसके ऊपर क्या है, खड़ा जबर है ना। अब ये खड़े जबर को साकिन नहीं करना, खड़ा जबर पढ़ के रोकना, ये खास बात है, ये एक्सेप्शंस बता रहा हूं मैं। हाँ, ये आप खड़े जबर को कभी नहीं वो करना, खड़ा जबर पढ़ के रोकना। हाँ, खड़ी जबर और उल्टा पेश है, आप उसको साकिन कर देना। सिर्फ खड़ा जबर है तो आप पढ़ना, मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। सिर्फ खड़ा जबर है तो वैसे ही पढ़ना। और कहीं पर भी जो है आखिरी में जो है ना है, फॉर एग्जाम्पल मध्य असली है, कोई भी मध्य असली है, आप मध्य असली पढ़ के रोकना, मध्य असली को साकिन नहीं करना, क्योंकि आप ये आखिरी के अलिफ पे कुछ भी नहीं है वैसे ही, है ना। तो मध्य असली पढ़ के रोकना हमेशा। और एक खास बात क्या है, अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है दो जबर है, यहाँ पे ये खा है, समझे, दो जबर है और ये खत्म हो गया, आयत खत्म हो रही, तो आप क्या करना है, रोकने के खुद में एक जबर कैंसिल कर देना और मध्य असली करके रोकना। खौ, आप एक जबर गिरा दिए तो उन्हें एक जबर बच जाता, उसके बाद अलीफ है, ये मध्य असली हो जाता है, मध्य असली करके रोक सकते हैं आप, ये मध्य असली पे रोक सकते हैं आप। ये खड़े जबर पे आप बिल्कुल ऐसे ही रोकना, इसको साकिन नहीं करना। तो क्या चीज़ा मालूम है, खड़े जबर पे वैसे ही पढ़ना है, मध्य असली पे कुछ भी नहीं करना है, मध्य असली पढ़ के रोकना है। और दो जबर वाली तनवीन आई तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोकना है, जैसे यहाँ पे आई थी, मैं भी आपको बता रहा था, यहाँ पे उन्हें बताने के लिए लिखा था। ये देखिए अहद, ये दाल पे दो पेश थे, हम साकिन कर दी। इन्ना माल उसरी युस्रा, क्या करा, युस्रा में एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोका, युस्रा, है ना। अब जैसा ये नीचे की आयत है, दो जेर है, आप इसको साकिन, आनिया, ला तस्मऊ फीहा लागिया, साकिन कर दिए, सब साकिन करे तो तामरबूता हमें बदल जाती नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। तो अब क्या है, आप लोग गौर से, एक मैं जो बताया आप उसको गौर से देखिए। अब मैं आपको एक स्लाइड बता रहा हूँ, वो स्लाइड में आपको पूरे फायदे आपको एक साथ बता दूंगा, तो आपको जो है कुरान पढ़ते वक्त में कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। क्या है आपको, फायदा नंबर एक, आखिरी हर्फ को साकिन पढ़िए नीचे दी गई हालतों में, नीचे दी गई हालतों में आखिरी हर्फ को साकिन पढ़िए। जैसे जबर है साकिन करेंगे, जेर है साकिन करेंगे, पेश है जज़म लगाएंगे, खड़ी जेर है जज़म लगाएंगे, उल्टा पेश है जज़म लगाएंगे, दो जेर है तनवीन के जज़म लगाएंगे, दो पेश है तनवीन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया उन्हें, खड़ा जबर और खड़ा दो जबर की तनवीन को छोड़ दिया उन्हें। फायदा नंबर एक, ये जितने चीजें हैं 3 और 2 5 6 7 जगह 7 हालतों में जज़म। फायदा नंबर 2, अगर खड़ा जबर हो तो वैसे ही पढ़िए, ये मैं आपको अभी बताया, खड़ा जबर है तो वैसे ही पढ़िए, उसको साकिन नहीं करिए। फायदा नंबर 3, हाँ, अगर आखिरी लफ्ज पर दो जबर पर खत्म हो रहा है तो इसको अलीफ मत की तरह पढ़िए, दो जबर है तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके पढ़िए, ये भी बता दिया मैं। यहाँ पे तीनों का रिव्यू करा उन्हें, खुलासा, है ना। क्या करा, ये जितने हरफा हैं सबको आप साकिन कर सकते, खड़े जबर को वैसे ही पढ़ना है, दो जबर को एक जबर गिरा के मध्य असली करना है, ये खुलासा कर दिया उन्हें। और आगे बता रहा हूं, यहाँ पे है शकर, आप जबर निकाल के रोक रहे हैं तो शकर, शकरा नहीं पढ़ना, शकर, रा को साकिन कर। और अगर जेर है तो वल असरी, आप रोक रहे हैं तो वल असर साकिन कर देना। पेश है वल फतहू, आप रोक रहे हैं तो पेश निकाल के साकिन कर, वल फतहू, समझ गए ना।
यहाँ पे क्या है, रब्बी ही, हम क्या करते हैं, खड़ी ज़र निकाल के साकिन कर दी, रब्बी। लहू, हम उल्टा पेश निकाल के साकिन कर दिया, ला ला। यहाँ पे खड़ा जबर है, वैसे ही पढ़ेंगे, ताहा ताहा, रोके भी तो ताहा ही पढ़ेंगे, खड़ा जबर पढ़ के रोकेंगे, है ना। वद्दुहा, वद्दुहा ही पढ़ेंगे, खड़े जबर को साकिन नहीं करेंगे। ये रूल हर सबको मालूम होना कुरान पढ़ते हो, है ना। अब दो जेर है, बिनहरिन, बिनहर साकिन कर देना, बशरुन साकिन कर देना दो पेश को, बशर। हाँ, दो जबर को क्या करो बोल रहा उन्हें, यहाँ है तव्वाबन। अब उन्हें बोल रहा है एक जबर गिरा के रोकते हो, में कैसा पढ़ेंगे उसको, तव्वाबा। हुदन था, हुदा खड़ा जबर लगा देंगे, है ना, हुदा। मा अन था, मा आ। दो जबर की तनवीन को हमेशा मद्दे असली करके दो हरकत से रोकना, दो जबर की तनवीन को सिर्फ, समझ गए आप। ये कायदा मैं ये तख्तियां आपको भेज दूंगा होमवर्क में आज। उसके बाद क्या है, मीम की और नून पे आप रोकेंगे इसको तो जेर निकालेंगे, लेकिन गुन्ना करेंगे बराबर। अलगम्मी था, यहाँ पे क्या था, अलगम्मी था। अब आप रोकेंगे तो कैसा पढ़ेंगे इसको, अलगम, जेर नहीं पढ़ेंगे आप। जानून, अब क्या करेंगे, दो तनवीन को निकाल दिए लेकिन तजदीद बाकी है, जान, उन्ना करके रोकेंगे, उसकी तनवीन नहीं पढ़ेंगे, है ना, समझ गए ना। वो उन्ना कैंसिल नहीं होता कभी भी, उन्ना वैसे रहता, उसके ऊपर जो हरकत है वो साकिन हो जाती है ना। ये है मुस्तखर, आप पेश निकाल दिए, रोकेंगे, तजदीद वैसी बरकरार रहेगी, मुस्तखर, थोड़ा रा को तकरार करके रोकना, ये मैं बाद में बताऊंगा। सामिरियु, सामिरी, तजदीद वैसी बरकरार रहती। अब यहाँ पे बिलहक़ी, यहाँ पे बिलहक़, बिलहज्जी, बिलहज, तब भी ये मैं आपको बात जब हम वो पढ़ लेंगे, अगला सबक पढ़ लेंगे तो ये समझ जाएंगे आप, आखिरी के 3 स्लाइड। तो ये मैं आपको भेजूंगा, आप जो है रोकने के तमाम अहकाम आपको मालूम हो गए। जितने जगह है सब जगह साकिन करना है, खड़े जबर को और मद्दे असली को और दो जबर की तनवीन को वैसे ही पढ़ना, मद्दे असली करके पढ़ना, बाकी सबको साकिन कर देना, है ना। रोकते वक्त में साकिन कर, ला पे नहीं रोकना, हर आयत पे रोकना, वक्फे लाजिम पे जरूर रोकना। तो ये आज का सबक था। हम थोड़ा ब्रीफ बताया मैं रोकने के अहकाम को, क्योंकि बाद में जब तफसील से हम रुमूज़ औक़ात पढ़ेंगे, रोकने के अहकाम पढ़ेंगे, द रूल्स टू स्टॉप पढ़ेंगे, उसमें और मजीद तफसील से आपको पूरा बताऊंगा। अब हम रोज की, क्योंकि अब हम छोटे छोटे सूरह पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो मैं जरा रोकने के अहकाम को ब्रीफ बता दिया। अब हम कैसा पढ़ेंगे उसको, हर आयत पे कैसा रोकेंगे, रोकते वक्त में कैसा साकिन करेंगे, बीच में वक्फे जायज आया तो कैसा रोकेंगे, वक्फे मुतलक आया तो कैसा रोकेंगे, वक्फे लाजिम आया तो कैसा लाजिम रोकेंगे। ये छोटे मोटे अहकाम मैं आपको आज बता दिया। आज हम तनवीन पढ़े और थोड़े रोकने के अहकाम पढ़े। अब हम यहाँ से जो है हम जो है थोड़ा बड़े सूरे पढ़ना शुरू करें। ये बड़े सूरे क्या, हम 30वें पारे के जो सूरे आखिरी के छोटे छोटे वाले, पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद एक एक रूल रोजाना पढ़ते जाएंगे। अब तक हम जो है 2 मेन लेसन पढ़े, एक लामे जलाला और एक गुन्ना, एक लामे जलाला और एक गुन्ना। कल का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें आपको बताऊंगा अलीफ के अहकाम, ये बता के फिर मैं आपको जो है सूरे कैसा शुरू करना वो भी बताऊंगा, अलीफ के अहकाम बताऊंगा कल, अलीफ के किस्में, अलीफ के अहकाम, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो कल सब लोग पाबंदी से आइए और हर दिन आइए और होमवर्क को जो है फॉलो करिए। ये जितने रोकने के मैं स्लाइड आपको बताया आज, ये पूरे मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा। घर में घर में इस पे गौर करिए, हर इसके ऊपर गौर करके देखिए क्या बोल रहा हूँ, क्या करो बोल रहा, कैसा करना है ना। पूरे स्लाइड आपको भेजूंगा मैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करना है तो मेरे से करिए, फिर हम दुआ पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे। तो जी ये तनवीन का हरकत एक ही होता है ना?
तनवीन का हरकत एक ही है, आपको उसमें क्या है, सुकून आ जाता ना, आपको मैं बता दूं, हम पढ़े ना इसमें जो है खींचने का सवाल ही नहीं है उसमें। जब कोई चीज साकिन आ गई तो उन्हें वैसे ही डन बोल के एकदम रुक जाती। यहाँ पे कहाँ गई हो, ये देखिए, ये दो जबर थे तो हम कैसा पढ़ते इसको, तन कहाँ खींच रहे, तिन कहाँ खींच रहे, तुन कहाँ खींच रहे, खाली जबर पड़ रहा है एक हरकत, तन खाली नून मिल रहा ना, वो जजम वाला है, वैसे जजम वाला तो वैसे ही नहीं खींचा जाता, बल्कि आवाज रुक जाती उसमें, सुकूनत इख्तियार कर लेती है ना। आप देखिए तनवीन वाले को, तन, बुन नहीं खींचे जा रहा ना, पेश पढ़ के नून को मिला दे रहे हैं उसको, बुन, क्योंकि अब आप जब आप ये जजम जो है जाके, ये जजम जाके पेश को पकड़ रहा, बुन खत्म, वही एक हरकत से पढ़ रहे, नून से मिला रहे खाली इसको, बन, बिन, बुन नहीं खींचा जाता। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, आप यू आर सेटिस्फाइड? जी जज़ाकल्लाह खैर साहब। और किसी को कुछ पूछना है तनवीन के ताल्लुक से या स्टॉप के ताल्लुक से? नो क्वेश्चन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि आज मैं जो बताया तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। मैं भी कुरान को पढ़ना शुरू करने से पहले, कुरान में उतरने से पहले मैं ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। अब हम जब तिलावत करेंगे कैसा रोकना, क्या है, कहाँ पे कैसा रोकना, कहाँ नहीं रोकना, कहाँ रोकना, तनवीन कैसा पढ़ना, ये सब चीज़ें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह समझ में आ रहा है। और तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आज दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप लोग सब माइक ऑन कर लीजिए और सब दुआ मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारा परवरदिगार बड़ी ही इज्जत वाला है, और बड़ी है उन तमाम बातों से, जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी जअलनी मुक़ीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आमीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका बरकतन फिल उम्र व सहतन फिल बदन व राहतन फिल मईशा व क़ुव्वतन फिर रिज़्क़ व ज़ियादतन फिल इल्म। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला अहकामिल कुरान। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہ ہمارے قرآن یا اللہ ہمارے قرآن کے سیکھنے کو تو قبول فرما ہم کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری درگزر فرما یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما اللہ ہم کو سیکھے یا اللہ ہم کو ہماری ہدایت کے راستے کھول دے یا اللہ جو ہے ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم جلدی جلدی جو ہے قرآن کو اچھا پڑھنا سیکھیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے جو والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما منور فرما ہمارے بابا و اجداد ہمارے جو بزرگ حضرات ہمارے ماں باپ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی خبروں کو منور فرما ان کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے جو نسلوں کے اندر جو ہے دین کے دائی پیدا فرما ہمارے بچوں کو نیک راستے پہ چلا ہم کو گمراہی سے بچا ہماری لڑکیوں کو گمراہی سے بچا ہم کو جو ہے دین پہ قائم رکھ یا اللہ ہم کو دین پہ قائم رکھ ہم کو نمازی بنا یا اللہ نماز کا پابند بنا یا اللہ نماز کا پابند بنا یا اللہ اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے کمزوریوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے اندر جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما ہمارے جو حالات ہیں یا اللہ ہمارے حالات کو تو بدل دے ہماری بے عزتی کو عزت سے بدل دے ہمارا بخار واپس لوٹا دے یا اللہ ہم جو ہے بہت بے عزت ہو چکے بہت ذلیل ہو چکے دنیا میں یا اللہ ہم کو دنیا میں عزت عطا فرما یا اللہ ہم کو دنیا میں جو ہے طاقت عطا فرما ہم کو جو ہے حکومت عطا فرما یا اللہ ہماری حکومتیں چلی گئی ہیں ہماری طاقت چلی گئی ہے ہم لوگ کمزور ہیں یا اللہ تو ہماری مدد فرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حالات کو بہتر بنا اور ان کو دین پہ چلنے والا بنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر